Hello everyone, this is your Vandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the introduction part of algebraic expression. Okay, and in today's session we are going to discuss the first exercise of this chapter, that is 12.1. Okay, so let's see the first question. Get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. ओके आपको यहाँ पर कुछ केसेस दे रखे हैं और उनको आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है. ठीक है, यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. y से आपको z का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. मीन्स तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y माइनस z. ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है? y. मीन्स यू हैव टू पुट दिस y फर्स्ट. ओके, देन दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड. ओके, y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? z. जनरली यहाँ पर मिस्टेक होती है, हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y मीन्स z माइनस वाई. नो, यहाँ फ्रॉम के बाद जो आ रहा है मीन्स किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? दैट इज y. y में से z का सब्ट्रैक्शन हो रहा है मीन्स y माइनस z. ओके, लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y. 1/2 means 1/2. okay, 1/2 of the sum means addition of numbers x and y. so x and y का sum means x plus y. okay, sum means addition of numbers x and y, and 1/2 of that means 1/2. okay, 1/2 of the sum of numbers x and y. okay, so 1/2 in bracket x plus y. This will be the algebraic expression for this statement. okay, let's see the third part. The number z multiplied by itself. ये नंबर z है और उसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? खुद से. मीन्स z का z से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो z इंटू z मीन्स z स्क्वायर. वी आर मल्टीप्लाइंग z 2 times मीन्स z विल हैव पावर 2. ओके, z की पावर क्या हो जाएगी? 2. z स्क्वायर्ड. ओके, किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? उस नंबर का स्क्वायर्ड मीन्स z स्क्वायर्ड. ओके, नाउ सी द फोर्थ पार्ट. 1/4 of the product of numbers p and q. okay, 1/4 means 1/4. of means multiplication. 1/4 means 1/4. of means multiplication. अब this is 1/4 of product. product means multiplication of numbers p and q means p and q का multiplication और उसका 1/4. okay, so this will be 1/4 pq. p into q we can write it as pq, and 1/4 of this pq will be 1/4 pq. okay, this is 1/4 of product of numbers p and q. okay, now fifth part is numbers x and y both squared and added. ओके, यहाँ पर नंबर्स x एंड y की बात की जा रही है. तो फर्स्ट क्या करना है? बोथ स्क्वायर्ड मीन्स दोनों को स्क्वायर्ड करना है मीन्स x स्क्वायर. ओके, एंड y स्क्वायर. x और y को पहले स्क्वायर करना है मीन्स उनका स्क्वायर लेना है, देन ऐड करना है मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, x एंड y को पहले उनका स्क्वायर करना है, देन उनको ऐड करना है.
Okay, so the algebraic expression for this statement will be x square plus y square. Okay, now the next sixth part is number 5 added to 3 times the product of number m and n. Okay, number 5 added, 5 को किस में ऐड करना है? 3 times means 3 multiply. Product means multiplication of numbers m and n. So if we take the product of numbers m and n means m into n. Okay, so 3 times product of numbers m and n. Okay, and 5 added to this. First is what? 5 added. So 5 plus 2 3 times means 3 into the product of numbers m and n means multiplication of numbers m and n. So we can write this as also 5 plus 3 in bracket m n or without bracket. Okay, 5 plus 3 m n. यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसको हम डिसअपियर भी मीन्स जरूरी नहीं है कि उसको शो करें. अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख रहे हैं 3 mn, सो इट मीन्स व्हाट? 3 into m into n means between these there is multiplication sign. Okay, if two variables written in continuous form without any arithmetic operation, that means what? They are multiplying. उनका क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n मीन्स 5 plus 3 mn. ओके, 5 plus 3 mn. नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. अब यहाँ पर क्या 10 में से फ्रॉम 10 मीन्स 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z मीन्स y एंड z का प्रोडक्ट को हमें किससे? 10 से सब्ट्रैक्ट करना है. सो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे. ठीक है, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर आता है सब्ट्रैक्शन में उसको हम पहले लिखते हैं. सो फ्रॉम 10 मीन्स 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z means multiplication of numbers y and z means y into z. Okay, so this is what? Product of numbers y and z subtracted from 10. So 10 minus y into z is yz. Okay, so the algebraic expression for this statement will be 10 minus yz. Now see the last part of this question. Sum of numbers a and b subtracted from their product. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. देयर मीन्स यहाँ पर नंबर्स क्या हैं? a एंड b की बात कर रहे हैं. उनके प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करना है किससे? वो नंबर्स पहले आएंगे. सो प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है मीन्स a इंटू बी. प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो a इंटू बी माइनस, अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है? सम ऑफ नंबर्स a एंड b. a एंड b के एडिशन को मीन्स इन ब्रैकेट a प्लस b. ओके, सो a इंटू बी इज वॉट? ए बी माइनस इन ब्रैकेट a प्लस b. ओके, sum of numbers a and b subtracted from product of ab. उनके प्रोडक्ट में से ab के सम को सब्ट्रैक्ट करना है. सो ab माइनस इन ब्रैकेट a प्लस v. ओके, सो दिस इज the question number 1. Let's move now question number 2 and its first part is identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and factors by tree diagram. Okay, यहाँ पर आपको कुछ algebraic expressions दे रखे हैं तो उनमें आपको उनके terms को identify करना है. Then उनको terms के factors को
टी डायग्राम के थ्रू शो करना है। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, x minus 3. The algebraic expression is x minus 3. Okay, so the terms will be this x and this minus 3. Okay, इस algebraic expression को हम क्या लिख सकते हैं, x plus in bracket minus 3. Why? क्योंकि जो algebraic expression के terms होते हैं they are always added. ठीक है, उनका क्या होता है, एडिशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस 3, यहाँ पर दो टर्म्स हैं बट उनके बीच में क्या, माइनस साइन है। सो x प्लस इन ब्रैकेट माइनस 3, वाई, प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो इसे हम एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे टर्म्स क्या होंगे, x एंड दिस माइनस 3। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होते हैं वो हमेशा क्या, एडिशन में होते हैं। ठीक है, सो x एंड माइनस 3 इनके फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ सिंगल x है तो फैक्टर भी x ही होंगे, यहाँ पर भी माइनस 3 ही होगा। ओके, लेट्स सी द सेकेंड पार्ट, 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसके ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3। ठीक है, 3 टर्म्स है। फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज x एंड थर्ड वन इज x स्क्वायर। ये तो आपके टर्म्स हो गए। ये देखिए तीनों टर्म्स के बीच में एडिशन का साइन है। ठीक है, इसीलिए 1x एंड x स्क्वायर, ये क्या हो गए आपके टर्म्स। फैक्टर्स, अब देखिए 1 तो सिंगल है, ठीक है, फैक्टर इसका 1 ही रहेगा, x का भी x ही रहेगा। x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, x बिकॉज x इंटू x इज x स्क्वायर। ओके, सो द फैक्टर्स विल बी x एंड x। नाउ सी द सी पार्ट, y माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 1 2, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो इस माइनस साइन के साथ ये सेकेंड टर्म होल्ड करेगा। ठीक है, तो टर्म्स क्या हो गए इसके, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म हो गया आपका y एंड सेकेंड टर्म विल बी माइनस वाई क्यूब। ओके, जब भी टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइन के साथ आपको टर्म्स को कैरी करना होगा। ठीक है, यहाँ पर y क्यूब से पहले माइनस साइन है, इसलिए y माइनस वाई क्यूब विल बी द सेकेंड टर्म। ओके, अब देखिए इनके फैक्टर्स, तो y तो ओनली सिंगल फैक्टर है, किसी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो y खुद का ही फैक्टर है। यहाँ पर जरूर y की पावर क्या है, 3 है, मीन्स y 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में नेगेटिव साइन भी है। ठीक है, तो इसके जब आप फैक्टर्स करेंगे तो कितने आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई। ओके, वाई इंटू वाई इज वाई क्यूब। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, 3 टाइम्स माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो इन आंसर दिस इज होल्डिंग माइनस साइन। ओके, सो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस वाई क्यूब के, माइनस वाई इंटू माइनस वाई। ओके, सो दिस इज द टी डायग्राम for terms and factors of this algebraic expression. Let's move to the D part. See, the terms will be of this algebraic expressions as 5xy square and the second term is 7x square y. Okay, यहाँ पर इस algebraic expression में 2 terms हैं, क्योंकि 2 टर्म्स के बीच में ही एडिशन का साइन है। सो फर्स्ट वन विल बी 5xy स्क्वायर एंड द सेकेंड वन विल बी 7x स्क्वायर y। तो ये तो हो गए टर्म्स। ओके, अब हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके देखिए, सो 1 2 एंड y स्क्वायर मीन्स y इंटू वाई। ठीक है,
y इंटू वाई, तो फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, देखिए फर्स्ट फैक्टर दिस 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई. 5 into x into y is 5xy square. So first factor will be 5, second one will be x, and the third one will be y square, means y into y. So y and y will be the factors. Okay. Likewise of this 7 factor होगा, then x square means x into x and y. Okay. So 1, 2, 3 and this 4. 7 into x means 7x square into y means 7x square y. ओके. तो फैक्टर्स इस टर्म के क्या हो जाएंगे, 7x x y. नाउ सी द ई पार्ट, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3. ओके. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कितने टर्म्स होंगे, 3 होंगे. सो अगर ट्री डायग्राम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स के लिए बनाते हैं तो फर्स्ट टर्म विल बी दिस माइनस ए बी एंड द सेकेंड टर्म विल बी 2b स्क्वायर एंड द थर्ड टर्म विल बी विद माइनस साइन मीन्स माइनस 3a स्क्वायर. ओके. मैंने आपको पहले ही बताया है कि टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा ऐड होते हैं. अगर सपोज माइनस का साइन है किसी टर्म के आगे तो उस टर्म को माइनस साइन के साथ आपको लेना पड़ेगा. ठीक है. सो जैसे कि इसमें माइनस ए बी, दिस विल बी द टर्म हियर, माइनस 3a स्क्वायर इज द टर्म, नॉट 3a स्क्वायर ओनली, नो, विद नेगेटिव साइन इट विल बी अ टर्म. ओके. अब इन टर्म्स के फैक्टर्स भी आपको करने हैं. तो देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए एंड बी. माइनस ए इंटू बी इज माइनस ए बी. ओके. इसी तरीके से इसके टर्म्स क्या हो जाएंगे, इसी तरीके से इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फर्स्ट 2b एंड b. 2 इंटू बी इज 2b स्क्वायर. ओके. 2b इंटू बी इज b स्क्वायर. ओके. तो 3 फैक्टर्स हो जाएंगे. इसी तरीके से इसके माइनस 3a इंटू ए, माइनस 3a इंटू ए इज a स्क्वायर, सो माइनस 3a स्क्वायर. ओके. नाउ द सेकेंड पार्ट इज आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो. ओके. सो इस पार्ट में भी आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उनमें से आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनके फैक्टर्स को भी लिखना है. ओके. इसमें आपको ट्री डायग्राम के थ्रू शो नहीं करना है. ओके. सो सी द फर्स्ट पार्ट, माइनस 4x प्लस 5. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें पहले आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट टर्म आपका माइनस 4x हो जाएगा. ओके. और सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, 5. मीन्स टर्म्स क्या हो गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, माइनस 4x एंड 5. अब माइनस 4x के फैक्टर्स क्या होंगे, माइनस 4 होगा एंड x होगा. ओके. minus 4 into x is minus 4x, so minus 4 will be one of its factor and x, and 5 का factor तो खुद ही 5 ही होगा. Okay. Now see the second part, minus 4x plus 5y. तो यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, माइनस 4x, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 5y. ओके. और अगर हम इनके फैक्टर्स देखते हैं तो माइनस 4 और x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 इंटू एक्स इज माइनस 4x. सेकेंड टर्म का अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होंगे, 5 एंड y, बिकॉज 5 इंटू y इज 5y. सो फैक्टर्स विल बी 5, y. नाउ सी द सी पार्ट, 5y प्लस 3y स्क्वायर. यहाँ पर भी आपके दो टर्म्स दे रखे हैं. तो फर्स्ट टर्म इज 5y एंड द सेकेंड टर्म इज 3y स्क्वायर. ओके. अगर हम इनके फैक्टर्स को देखें, सो 5y मीन्स 5 एंड y and the second term is 3y square, so the factors will be 3
and y square means y into y. So y comma y. ओके अगर इन फैक्टर्स का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टर्म आपको मिल रहा है. 3 इंटू वाई इज 3y इंटू वाई मीन्स 3y स्क्वायर. ओके नाउ सी द डी पार्ट. एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. यहाँ पर भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी टू टर्म्स है. सो फर्स्ट टर्म इज एक्स वाई एंड द सेकेंड टर्म इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. मीन्स इन दो टर्म्स के बीच में क्या है, एडिशन साइन है. ठीक है, तो ये एडिशन साइन इन टर्म्स को सेपरेट करता है. तो फर्स्ट टर्म आपका एक्स वाई हो गया, सेकेंड टर्म क्या होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके अगर हम इनके फैक्टर्स करते हैं तो x इंटू वाई मीन्स x कॉमा वाई इसके फैक्टर्स होंगे. यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स 2 एक फैक्टर होगा, x स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स. सो 2x फैक्टर्स हो सकते हैं इसके एंड y स्क्वायर मीन्स y इंटू वाई मीन्स y कॉमा वाई. सो 2x x y कॉमा y. 2 into x is 2x into x 2x square, y into y is y square. So the term will be 2x square y square. Now see the E part, pq plus q. So here also there are two terms. So first term is pq, okay, and second term is q. So the factors of this term pq will be p and q. Okay, pq means एक वेरिएबल आपका p हो गया, सेकंड वेरिएबल q मीन्स फैक्टर्स भी यही हो जाएंगे. और इसका फैक्टर ये तो सिंगल है तो इसका फैक्टर ये खुद ही होगा. ओके नाउ सी द एफ पार्ट. 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A. तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया. ओके सो फर्स्ट टर्म इज 1.2 AB, ये पॉजिटिव ही है. ठीक है, सेकेंड टर्म आपका नेगेटिव है. ठीक है, सेकेंड टर्म के सामने क्या है, नेगेटिव माइनस का साइन है, तो माइनस साइन के साथ ही इस टर्म को लेना है. माइनस 2.4 B एंड द थर्ड टर्म इज 3.6 A. ये क्या है, पॉजिटिव है. ओके अगर हम इन टर्म्स के फैक्टर्स को चेक करें तो देखिए नंबर क्या है यहाँ पर 1.2, एक फैक्टर ये हो जाएगा, देन A देन B. ओके एंड इसमें माइनस 2.4 नंबर हो गया, वेरिएबल क्या है B, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा. 3.6 A नंबर क्या है 3.6, एक फैक्टर ये हो गया, सेकंड वेरिएबल क्या है A. तो ये क्या हो गए इनके फैक्टर्स. इसी तरीके से जी पार्ट देखिए 3/4x प्लस 1/4. तो फर्स्ट टर्म इज 3/4x, सेकेंड टर्म इज 1/4. ओके दो टर्म्स है. अगर इनके हम फैक्टर्स को देखें तो नंबर यहाँ पर क्या है 3/4 और वेरिएबल क्या है x. ओके इसी तरीके से 1/4 यहाँ पर ओनली नंबर है तो ये नंबर खुद ही से डिविजिबल होगा. सो 1/4 will be its factor. Okay now see the h part. 0.1 p square plus 0.2 q square. यहाँ पर प्लस बीच में लगा हुआ है, दो टर्म्स हैं. सो फर्स्ट टर्म इज 0.1 p square and the second term is 0.2 q square. ओके अगर हम इनके फैक्टर्स को देखते हैं तो फैक्टर्स इसका क्या होगा 0.1 ये एक नंबर, p स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो फैक्टर क्या हो जाएगा p कॉमा p. ओके इसी तरीके से 0.2 q स्क्वायर. सो फैक्टर्स क्या होंगे 0.2 ओके एंड q स्क्वायर मीन्स q 2 टाइम्स. ओके नाउ question number 3 is identify the numerical coefficients of terms other than constants in the following. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स उन टर्म्स के लिखने हैं जो कांस्टेंट नहीं है, मीन्स अदर देन कांस्टेंट टर्म्स के आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने हैं. ओके तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है,
5 माइनस 3t²। ओके, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म आपका 5 है एंड सेकेंड टर्म इज माइनस 3t²। ओके, अब कॉन्स्टेंट्स को छोड़कर जो टर्म्स हैं उनकी हमें बात करनी है, उनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 5, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा टर्म देखिए क्या है, माइनस 3t²। माइनस 3t², ये क्या है, दिस इज द टर्म अदर देन कांस्टेंट। ये टर्म क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर नंबर भी है वेरिएबल भी है। ठीक है, तो हमें ऐसे टर्म्स को कंसीडर करना है जो कांस्टेंट नहीं है। तो 5 को हमें कंसीडर नहीं करना है, माइनस 3t² इज द टर्म हियर, ओके, विच वी हैव टू कंसीडर। नाउ वी हैव टू राइट इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। मीन्स इस टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीन्स वेरिएबल को छोड़कर जो नंबर यूज हो रहा है दैट विल बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सो माइनस 3t² मीन्स दिस माइनस 3 will be the numerical coefficient. Okay, now see the second part, 1 plus t² plus t³। यहाँ पर देखिए 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को छोड़ दीजिए। t है, देन t² देन t³। इन तीनों ही टर्म्स में वेरिएबल्स आपके यूज हो रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है। तो फॉर सेकेंड टर्म इज t एंड t² एंड t³। ओके, अब इन तीनों ही टर्म्स के आपको क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने हैं। तो देखिए t के सामने कोई भी नंबर नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं होता है तो आपको क्या लेना होता है, 1। ओके, बिकॉज 1 इंटू टी इज t। 1 का आप किसी भी वेरिएबल या नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, आपको सेम वेरिएबल या नंबर मिलता है। तो यहाँ पर 1 क्या है, शो नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के अगर वो अलोन है, अकेला है, बिना किसी नंबर के, इसका मतलब वहाँ पर उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसका 1 हो जाएगा, t² का भी 1 हो जाएगा एंड t³ का भी 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी द थर्ड पार्ट, x प्लस 2xy प्लस 3y। यहाँ पर जो तीनों टर्म्स हैं उनमें कोई ना कोई वेरिएबल यूज हो रहा है, मीन्स तीनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो तीनों को ही हमें कंसीडर करना है। सो फर्स्ट टर्म इज x, सेकेंड टर्म इज 2xy एंड द थर्ड टर्म इज 3y। अब इन सभी टर्म्स के वेरिएबल को छोड़कर मीन्स नंबर आपको लिखना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब हमें 1 लेना है। सो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। 2xy, तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं, x एंड y। ओके, x y, और उनके आगे नंबर क्या यूज हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, 2। सो 2 विल बी इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। लाइकवाइज 3y, y इज द वेरिएबल एंड 3 इज नंबर, सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सो 3। ओके, मीन्स जब भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात की जाएगी किसी भी टर्म में, तो आपको नंबर वहाँ लिखना है, कोई वेरिएबल नहीं लिखना है। ओके, नाउ सी द फोर्थ पार्ट, 100m प्लस 1000n। यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं और दोनों में ही वेरिएबल्स है, मीन्स कोई भी टर्म यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमें इन दोनों ही टर्म्स को कंसीडर करना है। सो 100m एंड 1000n। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन टर्म्स का लिखना है, तो मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर यहाँ पर हमें देखना है। वेरिएबल क्या है, m के साथ नंबर क्या है, 100, तो 100 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरीके से n के आगे कौन सा नंबर है, 1000, तो 1000 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा इस टर्म में। ओके, नाउ सी द फिफ्थ पार्ट, -p² q² प्लस 7pq। यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं और दोनों में ही वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, मीन्स कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है, मीन्स दोनों टर्म्स को आपको लिखना है। सो फर्स्ट टर्म इज -p² q² एंड द सेकेंड टर्म इज 7pq। ओके, अब देखिए इस फर्स्ट टर्म में वेरिएबल्स आपके p² q² है, तो इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है, माइनस साइन है, इसका मतलब कोई नंबर नहीं है वेरिएबल्स के साथ, तो आपको क्या लेना है, 1। तो इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, विद दिस साइन -1। ओके, -1 का जब आप p²
क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही आएगा। इसी तरीके से 7pq, pq क्या है, वेरिएबल्स हैं और नंबर यहाँ पर क्या है 7, सो दिस विल बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7. ओके, नाउ सी द सिक्स्थ पार्ट, 1.2a प्लस 0.8b, दोनों ही टर्म्स में वेरिएबल्स हैं a एंड b, तो दोनों को ही कंसीडर करना है, मीन्स 1.2a एंड द सेकेंड वन 0.8b। नंबर्स क्या हैं, वेरिएबल के साथ 1.2, तो वही इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, एंड सेकेंड का भी 0.8। ओके, किसी भी टर्म में अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला जाता है, इसका मतलब वेरिएबल्स को छोड़ के जो भी नंबर्स होंगे वो उसके साइन के साथ क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। नाउ सी द सेवेंथ पार्ट, हियर द एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म 3.14 आर स्क्वायर। ओके, और इस टर्म में आपका वेरिएबल क्या है, आर स्क्वायर, मीन्स आर है, ठीक है, तो ये टर्म आपका कांस्टेंट नहीं है, सो 3.14 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके साथ नंबर क्या है 3.14, सो दैट विल बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सो 3.14. ओके, नाउ सी द एट्थ पार्ट, 2 इन ब्रैकेट l प्लस v। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर l और b का क्या है, एडिशन है और उसका 2 टाइम्स। ओके, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इस 2 का हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू एल इज 2l प्लस 2 इंटू वी इज 2v। ओके, अगर हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर या क्वांटिटी है उसका ब्रैकेट के अंदर वाले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है, तो l प्लस b ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इस 2 का l के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 का b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो 2l प्लस 2b। ओके, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका इसमें चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं और दोनों ही क्या हैं, नॉन कांस्टेंट, मीन्स कांस्टेंट नहीं है, सो फर्स्ट टर्म इज 2l एंड द सेकेंड टर्म इज 2b। तो वेरिएबल्स क्या हैं, l एंड b, और बिफोर वेरिएबल्स द नंबर इज 2, दैट विल बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच वन, सो 2 इस टर्म का भी और 2 इस टर्म का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ओके, नाउ सी द नाइन्थ पार्ट, 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं और दोनों में ही वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, दोनों को ही कंसीडर करना है, सो 0.1y एंड द सेकेंड वन इज 0.01y स्क्वायर। ओके, अब देखिए 0.1y, y के साथ नंबर क्या है 0.1, यही इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर भी 0.01 y स्क्वायर के साथ नंबर क्या है 0.01, दैट विल बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। ओके, so that is all about today's session in which we have discussed question number 1 to question number 3 of exercise 12.1. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further question of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.